We are doing physics chapter 4 and this is part B, atmospheric pressure and its measurement. Do you know what is atmosphere? Earth is surrounded by air up to a height of about 300 km from its surface. This envelope of air around the earth is called atmosphere. This is the definition of atmosphere. I'm sure you might have come across this definition in geography as well. So this atmosphere consists of air whose density is different at different heights. The density of air goes on decreasing as you go higher above. Okay, the density of air is greater near the surface of the earth. Okay, now this weight of air column exerts a thrust on the earth's surface. Suppose, let me show you with the help of a diagram. Let's say that this is the Earth's surface and this is the atmosphere above the Earth's surface, 300 kilometer. So suppose we consider a small, let's say small area on Earth's surface, and if we imagine an imaginary air column above the space. Okay, so this space is full of air. It is filled with the gas, the air, the atmospheric air, right? And this air, because air is gas and gas is a matter, so every matter occupies space, has mass, and if it has mass, it will have some weight, and due to acceleration due to gravity, this air will exert a force in downward direction. Okay, let me show you again. The downward direction will be like this. So what is happening? This is the thrust exerted by this air column on this area of earth. अर्थ की सरफेस पे कोई एक इमेजिनरी एरिया ले लो, तो ये जो एयर कॉलम है उसके ऊपर थ्रस्ट एक्सर्ट करता है. And the thrust exerted on unit area of earth's surface is called atmospheric pressure. So what is the exact definition of atmospheric pressure? The thrust exerted per unit area on the earth's surface due to column of air is called the atmospheric pressure on the surface of earth. The weight of air column over 1 centimeter square area on the earth's surface is nearly 1 kgf. The weight of air column over 1 centimeter square area on the earth's surface is nearly 1 kgf. 1 centimeter square area, just imagine how small that area is. And on 1 centimeter square area there is a weight of air column due to the atmospheric air of approximately 1 kilogram. So the atmospheric pressure, the value of atmospheric pressure on earth's surface is about 1 kgf per centimeter square. You know how much is that? See, atmospheric pressure PA is equal to 1 kg per 1 centimeter square, 1 kg per 1 centimeter square, which is approximately equal to 10 Newton per 10 raised to minus 4 meter square, which is equal to approximately 10 raised to 5 Newton per meter square. मतलब 1 meter square area पे 10 raised to 5, 10 raised to 5 is 1 lakh Newton. 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एयर का कितना प्रेशर है? एयर कॉलम का 1 लाख न्यूटन जितना. मतलब एवरी 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ is experiencing a pressure of 1 lakh Newton on it due to atmosphere. हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया है, एवरेज सरफेस एरिया एक ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग का 2 मीटर स्क्वायर होता है. जस्ट इमेजिन कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया रखता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 1 लाख न्यूटन का थ्रस्ट या थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना थ्रस्ट एक्ट करेगा? 2 लाख न्यूटन, 2 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन का. You know how much is that? That is 2 lakh Newton is the weight of some certain number of elephants. कितना elephants?
around 2 lakh Newton is around how many kg? 2 lakh Newton is around 20,000 kg. 200 एलिफेंट्स का वेट, समथिंग लाइक दैट, 20 और 200 एलिफेंट्स का वेट है हमारे ऊपर अभी. तुम्हें फील हो रहा है क्या? आर यू फीलिंग दैट वेट? आर यू फीलिंग दैट वेट ऑन योर सेल्फ? नो, यू आर नॉट फीलिंग. So why are you not aware of this enormous thrust or load on yourself? Because pressure of your blood pressure balances it. हमारे बॉडी के अंदर से भी एक प्रेशर है बाहर की तरफ, दैट इज ब्लड प्रेशर, और बाहर से अंदर की तरफ एक प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन. ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. द ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. हाउएवर एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे ही तुम किसी माउंटेन पे जाते हो, माउंटेन मतलब ऐसा वो खारगर हिल्स वाला माउंटेन नहीं, माउंटेन मतलब प्रॉपर हिमालय और सम टॉल वेरी वेरी हाई माउंटेन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लेस. क्योंकि तुम जितना हाई अबाउ द अर्थ सरफेस जाओगे, जैसे कि सपोज लेट्स से ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे ये एयर का कॉलम है, और सपोज यहाँ पे एक माउंटेन है. तुम माउंटेन पे ऊपर यहाँ पे पहुंच गए, तो तुम्हारे ऊपर जो एयर के कॉलम का हाइट है वो कम हो जाएगा कंपेयर्ड विथ द हाइट ऑफ एयर कॉलम ऑन द सी लेवल. सी लेवल और माउंटेन लेवल पे हाइट ऑफ एयर कॉलम में बहुत फर्क होता है. यहाँ पे हाइट ऑफ एयर कॉलम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हाइट ऑफ एयर कॉलम ड्यू टू एटमॉस्फेयर बहुत कम है. मतलब माउंटेन के टॉप पे अगर एयर कॉलम का हाइट कम हो जाएगा, मतलब क्या है उसका? ये मतलब है कि माउंटेन के टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फील होगा ना, वो कम फील होगा. इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है. और कभी कभी कुछ लोगों को, जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं या जो लोग बहुत रेयरली जाते हैं ऐसी जगह पे जिनको आदत नहीं है ऐसी जगहों की, उनको नोज ब्लीडिंग होता है. नोज ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग, ये इसलिए होता है बिकॉज जो अंदर का बॉडी का ब्लड प्रेशर है दैट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कुछ कुछ लोगों के कान भी बंद हो जाते हैं, और फिर जब वो वापस नीचे आते हैं तो उनके कान खुलने लगते हैं, एंड देन इट पेन्स अ लॉट. ठीक है. सो दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फंडा क्लियर हो गया तुम्हारा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो क्या करता है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और हमको वो फील क्यों नहीं होता. ठीक है. और जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे होता है, और मुंबई एंड एरियाज अराउंड मुंबई जनरली आर एट सी लेवल. तो हम लोग सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सरवाइव कर रहे हैं. जैसे ही हम माउंटेन्स में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं या फिर उत्तराखंड जाते हैं या फिर जो भी हाई माउंटेनस एरिया है जो सी लेवल से काफी ऊपर है, तो वी फील लिटिल डिफिकल्ट, यू कैन से, सर्वाइविंग देयर. थोड़ा बॉडीली भी डिफरेंट लगता है. लाइफस्टाइल तो ऑफकोर्स, लाइफस्टाइल, खाना, टेम्परेचर, ये सब तो डिफरेंस है ही, लेकिन फिजिकली भी यू फील डिफरेंट बिकॉज ऑफ द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर at the place which you are living in, you are habituated living in, and the atmospheric pressure of mountainous regions. ओके. चलो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का. तो आप लोग घर पे भी ये डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे बच्चों को कि आप लोग जब ये डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, तो अगर आपकी मम्मी आपको पीछे से पकड़ के मारेगी तो प्लीज ये कंप्लेन मत करना, मेरा नाम मत लेना, मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है ये. ठीक है. बट तुम लोग कर सकते हो. यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट बट एट योर ओन रिस्क. हाँ, हाथ वाथ जल गया, हाथ पे गर्म पानी गिर गया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए. ठीक है. सो आप लोग देख लो कैसे करना है. मैं तुम्हें बताता हूँ. इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कोलैप्सिंग टिन कैन एक्सपेरिमेंट. कोलैप्सिंग टिन कैन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ. यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा है. अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाउ टू मेक द आंसर, हाउ टू राइट द आंसर, तो वो पूरा रीड कर सकते हैं. बहुत ही मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ. ठीक है. ओके. देखो कैसे करना है तुम्हें. पहले एक टिन कैन लेना है. तुम सोडा कैन भी ले सकते हो. सोडा कैन मतलब जो तुम्हारा वो कोक या पेप्सी या फिर स्प्राइट का जो कैन आता है ना, एल्यूमिनियम का, वो वाला कैन भी तुम ले सकते हो.
कुछ लोग सोच रहे सर बियर कैन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो, अगर पापा बियर पीते हैं तो आप ले सकते हो, बियर कैन भी ले सकते हो। लेकिन अगर बियर कैन के साथ खेलते हुए आपको आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने या आपके चाचा चाची आपकी दादी ने देख लिया और आपकी पिटाई कर दी, तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो आपको जो कैन लेना है लो, ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पे। मेरे को एक डॉक्यूमेंट भी साइन करवा लेना चाहिए तुमसे कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं। तो टिन कैन लेने के बाद क्या करना है? यू हैव टू पुट अ लिटल बॉइलिंग वाटर इनटू इट। यहाँ पे तो पूरे टिन कैन को हीट किया है पानी के साथ। ये तो करना ही मत, ये तो करना ही मत, गैस के ऊपर वो टिन कैन मत रख देना, ठीक है? पहले वाटर को बॉईल कर लो। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग हॉट वाटर को तुम्हें टिन कैन के अंदर डालना है। अब उसका जो माउथ है तुम्हारे सोडा कैन का, वो तो बहुत छोटा होता है, उससे आराम से अंदर डालना है। अगर तुम्हारे पास कोई फनल है तो बहुत बढ़िया, फनल अंदर चली जाएगी और फनल से आराम से धीरे धीरे भरो। पूरा नहीं भरना है उसको, सिर्फ हाफ भरना है। हाफ से भी कम भरा है पिक्चर में तो, ठीक है? तो बॉइलिंग वाटर तुमने अंदर भर दिया। अब क्या होगा कि बॉइलिंग वाटर अंदर चला गया, अंदर स्टीम से भर जाएगा पूरा टिन कैन, और स्टीम का प्रेशर अंदर के जो वॉल्स है उसके ऊपर एक्सर्ट होगा। एयर कहाँ जाएगी? अंदर जो पहले एयर थी, एयर सब बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हॉट एयर राइजेस अप, राइट? हॉट एयर राइजेस अप, ये तो हमने पढ़ा है ना लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में। क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी से कम होती है इसलिए वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हॉट एयर तो एस्केप करके निकल जाता है। पूरा जो टिन कैन है ना वो स्टीम से भर जाएगा बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग वाटर। अब क्या करो, इफ यू कैन, एक पेपर ले लो और वो पेपर को ऐसे यू कैन से उसको रोल करके या कैसे भी करके वो टिन कैन के या सोडा कैन के जो उसका जो ओपनिंग है उसके ऊपर डाल दो, मतलब उसको बंद कर दो बेसिकली। बंद नहीं भी करोगे ना तो भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अभी बाहर से तुम्हें क्या करना है? बाहर से याद रखो, एक कोल्ड वाटर का ग्लास लेना है। आइस कोल्ड रहेगा तो बहुत अच्छा है। कोल्ड वाटर का ग्लास लेना है और थोड़ा उसको दूर रखना, ठीक है, ये तुम्हारे टिन कैन को। और वो सोडा कैन को थोड़ा दूर रखना, और बाहर से कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाल देना। जैसे ही कोल्ड वाटर डालोगे ना वो ऐसा क्रश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा अपने आप ही। तो तुम सोचोगे कोल्ड वाटर क्रश करता है? कोल्ड वाटर में इतना पावर होता है? हमने तो कभी नहीं सोचा था। कोल्ड वाटर नहीं कर रहा है ये क्रश, ये एयर प्रेशर क्रश कर रहा है। देखो पहले क्या था कि अंदर स्टीम का प्रेशर था, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, टिन कैन कोलैप्स नहीं हो रहा था, नहीं होता है जनरली। लेकिन जैसे ही तुमने कोल्ड वाटर डाला, अब ये टिन कैन में पानी बहुत कम है, मोस्टली स्टीम है। कोल्ड वाटर डालने से ही स्टीम कंडेंस हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो अंदर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप हो जाता है मतलब प्रेशर कम हो जाता है। स्टीम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, अब स्टीम तो वाटर बन गया, तो प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? कोई नहीं। तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, और ये पूरा टिन कैन कोलैप्स हो जाता है, क्रश हो जाता है। एकदम से तुम देखोगे इंस्टेंटली वो क्रश हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ वीडियोस भी भेजूंगा यूट्यूब के, उसमें ये दिखाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। तो जिसको ये नहीं करना एक्सपेरिमेंट वो मत करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं है तुम्हारे पास इतना टाइम। बट अगर ये देख भी लोगे ना एक बार, तो यू विल गेट एन आइडिया। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज द प्रूफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है ये, ठीक है? कुछ कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी है, ठीक है? ये भी तुम एक बार समझ लोगे तो यू विल हैव एन आइडिया दैट हाँ, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं यू आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स, पूछते ही है, गिव रीजंस में आता है या कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर आता है मोस्टली। ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स, इसमें से ज्यादा थियरी आता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। फिर भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन ये थियोरेटिकल पार्ट पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थियोरेटिकल कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंस और एग्जाम्पल और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ गुड डिटेल, ठीक है? नंबर 1, सकिंग अ ड्रिंक विथ अ स्ट्रॉ, सॉरी नॉट ट्रॉ, स्ट्रॉ। सकिंग अ ड्रिंक विथ अ स्ट्रॉ, कैसे हम लोग किसी ड्रिंक को पीते हैं स्ट्रॉ को यूज करके। सो वी पुट द स्ट्रॉ इनटू द ड्रिंक, okay, and we suck out the air from the straw. You will say that no sir, we suck the drink through the straw. No,
ड्रिंक तो बाद में आता है, पहले तो एयर आती है थोड़ी सी, है ना, पहले थोड़ी एयर आती है और बाद में ड्रिंक आना शुरू करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही तुम एयर को सकआउट कर लेते हो स्ट्रॉ में से, स्ट्रॉ के अंदर का जो स्ट्रॉ के अंदर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एयर तो तुमने निकाल ली तो अंदर अभी प्रेशर है ही नहीं। लेकिन स्ट्रॉ का जो दूसरा एंड है वो ड्रिंक के अंदर डिप्ट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ग्लास या बॉटल में ड्रिंक है या लिक्विड है उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो तो तुम्हें नहीं करना पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ड्रिंक गेट्स इनटू द स्ट्रॉ and takes place of the air which you have sucked out, and it does not stop there, it enters your mouth because you continue sucking। ठीक है, तुम वो एयर को सक करना कंटिन्यू कर रहे हो, तो एयर एंटर्स इनटू द स्ट्रॉ टू योर माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता यू कुड नॉट ड्रिंक विथ अ स्ट्रॉ, यू कुड नॉट ड्रिंक विद स्ट्रॉ। तुम स्पेस में जाओगे तो स्ट्रॉ का कोई काम नहीं है वहां पे, स्ट्रॉ तभी काम आएगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मून पे भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्ट्रॉ काम ही नहीं करेगा। तो सकिंग अ ड्रिंक और ड्रिंकिंग विद अ स्ट्रॉ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। एज सुन एज यू सक आउट द एयर the atmospheric pressure exerts pressure on the drink which enters the straw into your mouth, and the process continues till you keep on sucking, or till you keep on pulling the liquid or pulling the air out of the straw। ठीक है, चलो, filling a syringe with a liquid। So when a syringe is kept with its opening just inside liquid and its plunger is pulled up, plunger मतलब वही piston जैसा जो होता है, क्या होता है प्लंजर, व्हेन प्लंजर इज पुल्ड अप इट टेक्स आउट और इट सक्स आउट ऑल द एयर फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ द सिरिंज। but if air is sucked out then inside pressure will become less than that outside pressure, atmospheric pressure, and if the end of the syringe is dipped into a liquid then it will atmospheric pressure will force that liquid to get into the barrel or cylinder of the syringe, and the syringe gets filled with the liquid। ठीक है, तो फिलिंग अ सिरिंज विद द लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। फिलिंग ऑफ इंक इनटू अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन आई डोंट नो इंक पेन कितने लोगों ने यूज किया है, लेकिन अगर तुमने यूज किया है तो तुम्हें पता होगा कि इंक पेन पे एक ड्रॉपर से हम लोग इंक डालते हैं, लेकिन कुछ इंक पेन ऐसी होती है जिसमें इनबिल्ट ड्रॉपर जैसा कुछ होता है, मतलब उस इंक पेन के माउथ को अगर तुम तुम्हारे इंक पॉट में डालोगे एंड इफ यू प्रेस दैट ड्रॉपर काइंड ऑफ सॉफ्ट थिंग, और इफ यू रिलीज इट, प्रेस करोगे तो एयर बाहर निकल जाएगी, एंड व्हेन यू रिलीज इट तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल फोर्स द इंक टू गो इनटू द फाउंटेन पेन। इंक पेन की बात कर रहा हूँ, इंक पेन आई डोंट नो कितने लोग ने यूज किया है नहीं किया है, बट यार दिस रबर ट्यूब ऑफ फाउंटेन पेन जब उसको प्रेस करते हैं ऑल द एयर expels out in the form of bubbles through the ink, and when the rubber tube is released the pressure inside the rubber tube decreases, it becomes less than the outside atmospheric pressure, so atmospheric pressure forces the ink to get into that uh, uh, rubber tube through the capillary below the nib of the pen। ठीक है, सो ये फिलिंग इंक इनटू अ फाउंटेन पेन हो गया। फिर एक्शन ऑफ रबर सकर्स। डू यू नो रबर सकर्स? ये कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ गूगल पे, चलो, क्योंकि यार इसमें ये ड्राइंग पढ़ने से कुछ नहीं समझेगा। लेट्स सी अ पिक्चर रबर सकर, कुछ और ना निकल जाए भाई, गूगल बहुत रिस्की है, कुछ भी निकाल देता है। इसमें से रबर सकर ये वाला है, तुमने ये वाला तो बिल्कुल तुम्हारे घर पे भी होगा, तुमने कहीं ना कहीं तो ये यूज किया ही होगा, है ना, देखा है ना ये वाला। ये भी एक है, वो गटर साफ करने के लिए, वो पाइप वाइप सिंक के, किचन के सिंक में कुछ कचरा चला जाता है और पानी गटर से निकालने के लिए, तुम बोलोगे सर क्या क्या दिखाते रहते, कुछ भी निकालते हैं। एनीवेज, तो ये रबर सकर्स बोलते हैं इसको, या वैक्यूम हैंगर्स भी बोलते हैं, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। एनीवेज, तो इसका क्या काम है, इसको देखो कैसे ये काम करता है। रबर सकर्स आर ऑफन यूज्ड एज हुक्स इन द किचन एंड बाथरूम।
मोस्टली ये टाइल्स होते हैं ना जो तुम्हारे फ्लैट एंड यू कैन से स्मूथ टाइल्स, उसके ऊपर ये इजीली चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है? सो रबर सकर इज प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द वॉल सो दैट द एयर बिटवीन द सकर एंड द वॉल इज फोर्स्ड आउट। जब इसको प्रेस करते हैं बाहर से, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो एयर सारी साइड से निकल जाती है। एयर निकल जाती है तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसा हो जाता है, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बाहर से पुश करेगा, और जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको पुश करेगा वो उतना चिपक जाएगा वो सरफेस के साथ। ठीक है, और वो वैसे ही रहेगा जब तक उसको तुम यहाँ पे जो एज है ना, यहाँ से तो अगर तुम नाखून से थोड़ा सा खींचोगे तो फिर वो ओपनिंग खुल जाएगा और अंदर का वैक्यूम फिर से एयर से भर जाएगा और वो निकल जाएगा। बट तुम अगर नहीं निकालोगे उसको तो वो चिपका रहेगा। ठीक है, कभी कभी ये जो मटेरियल है प्लास्टिक का या रबर का जो भी है, वो थोड़ा सा हीट की वजह से या कुछ एक्सपांड हो जाता है, लूज हो जाता है, फिर ये अपने आप गिर जाता है। तुमने कार में देखा होगा कुछ लोग कार के जो फ्रंट विंडशील्ड है वहां पे वो लोग मोबाइल फोन होल्डर लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ रबर सकर्स। तो जब ज्यादा हीट होती है तब ये अपने आप फिसल के नीचे गिर जाता है। देखा होगा तुमने, यू आई एम श्योर यू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ओके, साइफन सिस्टम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, साइफन सिस्टम। तो देखो, साइफन सिस्टम में ये कुछ सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग जब उनके कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो दूसरे व्हीकल से पेट्रोल निकाल के इमरजेंसी के लिए डालते हैं। और कुछ लोग पेट्रोल ऐसे चोरी भी करते हैं। तुम्हें मतलब तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, अरे पेट्रोल क्यों चोरी करेगा, लेकिन होते हैं कुछ लोग कुछ स्मॉल टाउन्स में, और ये चलता रहता है ये सब। ठीक है, तो बिग टाउन्स में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बिग टाउनर्स बहुत, बट एजुकेटेड पीपल जनरली डोंट डू ऑल दिस। हमको पता होता है हमको कैसे जीना है, बट जनरली या some kind of some type of people they have this intention that ये पेट्रोल ले लूं मैं, तो ये सब करते हैं ये लोग। ठीक है, गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। सो सपोज तुम्हारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और तुम्हें इमरजेंसी तुम्हारी फ्रेंड की कार से या फ्रेंड के बाइक से या फ्रेंड के व्हीकल से तुम्हें पेट्रोल चाहिए। तो एक पाइप आता है, वो पाइप को पेट्रोल टैंक में डालने का। ठीक है, और वो पाइप के दूसरे एंड से सक करने का, जैसे स्ट्रॉ जैसे सक करते हैं ना, और तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा। तो नीचे बैठ के मतलब का जो तुम्हारे फ्रेंड का व्हीकल है उसकी पेट्रोल टैंक से नीचे लेवल पे तुम्हें एक बॉटल लेके बैठना पड़ेगा। कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, बॉटल लेके बैठना पड़ेगा रोड के साइड में, कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम, सिर्फ वो पेट्रोल को सक आउट कर रहे हो। ठीक है, तो यू विल सक आउट द पेट्रोल जस्ट लाइक योर स्ट्रॉ से सक कर रहे हो, वैसे पीना मत उसको। सक करके डायरेक्टली उसको बॉटल में डाल देते हैं और अपने आप वो गिरता रहता है। क्यों ऐसा है पता है? एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे फ्रेंड की कार के पेट्रोल टैंक के पेट्रोल के ऊपर आ गया, वो तो रहता ही है ऑफ कोर्स। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा कि तुम्हारे फ्रेंड की व्हीकल के पेट्रोल टैंक से जो पेट्रोल को तुमने खींचा है यहाँ तक, उसको वो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से और ये डिफरेंस इन लेवल की वजह से तुम्हारे बॉटल में या तुम्हारे कंटेनर में वो भरता रहेगा। फिर तुम्हें जितना पेट्रोल चाहिए तुम निकाल लो, नहीं चाहिए तो वो पाइप को ऐसे, ये बी को, एंड बी को ऐसे ऊपर कर दो, तो वापस पूरा पेट्रोल इधर चला जाएगा जितना भी है तुम्हारा। तुम्हें इमरजेंसी पेट्रोल मिल गया, तुम अपने व्हीकल के पेट्रोल टैंक में डाल दो, और फिर तुम इमरजेंसी में तुम्हारा काम हो गया। एंड ये क्यों होता है पता है? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। देर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। पॉइंट सी हायर लेवल पे है, पॉइंट बी लोअर लेवल पे है। वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये छोटा सा एक प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, इसको साइफन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं। ओके, इसका कुछ वीडियो होगा डेफिनेटली यूट्यूब पे, ये भी मैं भेजूंगा। मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा यार वीडियोस का। मैं क्या क्या, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में भी प्रॉमिस किया था, मैं ये भेजूंगा, मैं वो भेजूंगा। एक मैं यहीं पे लिस्ट बना लेता हूँ तुम लोग के लिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। एक तो मुझे भेजना है तुम्हें नंबर 1, हाइड्रोलिक मशीन्स, उसके ऊपर एक वीडियो भेजना है मुझे तुम्हें, अलग अलग जो भी है। दूसरा है मैंने तुम्हें बताया था, हाँ, कोलैप्सिंग टिन कैन का एक्सपेरिमेंट, कोलैप्सिंग टिन कैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
तीसरा है साइफन सिस्टम। ठीक है, तो ये तो वीडियोस मैं तुम्हें डेफिनेटली भेज दूंगा, और भी कुछ मुझे अगर लगेगा कि अच्छा है तो मैं भेजूंगा तुमको, ठीक है। ओके, एनीवेज, हाँ, सिक्स्थ है टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कैन। ये लास्ट कॉन्सिक्वेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, लेकिन ये अच्छा है, ये लास्ट वाला अच्छा है। आई जस्ट गिव यू सम सिमिलर एग्जांपल, सम लिटिल डिफरेंट बट सिमिलर एग्जांपल टू यू। तो एग्जांपल ऐसा है कि तुमने कभी वो मिल्क का टेट्रा पैक से मिल्क निकाला है क्या? मिल्क के टेट्रा पैक से मिल्क निकाला है? अमूल का जो टेट्रा पैक आता है, टेट्रा पैक मतलब वो बॉक्स जैसा, कार्डबोर्ड के बॉक्स जैसा जो ब्लू कलर का पैकेट आता है, ब्लू या रेड कलर का, अमूल का, उससे कभी मिल्क निकाला है तुमने? टेट्रा पैक से जब तुम उसको कट करके मिल्क निकालते हो ना, तो जब तुम उसको वेसल में डाल रहे हो, तुम डिपेंड करता है तुम कैसे उसको टिल्ट कर रहे हो। मिल्क थोड़ा निकलने के बाद अगर तुम उसको ज्यादा टिल्ट करोगे तो मिल्क निकलेगा नहीं, और फिर तुरंत एक साथ बहुत सारा मिल्क निकलेगा, वो स्पिल होता है, बाहर गिर जाता है। फिर से मिल्क ऐसा रुकेगा, फिर एक साथ बहुत सारा गिरेगा, मतलब वो उसका जो स्मूथ फ्लो है ना, वैसा नहीं होता है एट सर्टेन एंगल्स व्हेन यू आर पोरिंग द मिल्क। सो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एयर को अंदर जाने के लिए और मिल्क को बाहर आने के लिए एक ही होल है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो टेट्रा पैक है उसमें जहां पे तू कट कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड पे एक छोटा सा होल कर दो, छोटा सा होल। वो छोटे होल से एयर अंदर जाएगा और अंदर का और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देगा। फिर जब तुम पोर आउट करोगे मिल्क को, एकदम स्मूथली गिरेगा वो। सो दिस इज वन आइडिया। ऑयल को, ऑयल के टिन के बड़े बड़े कैंस आते हैं, आई डोंट नो अभी तो आते नहीं, अभी एक बॉटल आती है, मतलब बॉटल से सब लोग यूज करते हैं, बट ऑयल के भी टिन कैन आते थे पहले बड़े बड़े, और उसमें से जब ऑयल को निकालना होता था तो उसका एक ढक्कन जब खोलते थे और साइड में एक होल कर देते थे, और फिर जब ऑयल को निकालते थे एकदम स्मूथली गिरता था। ठीक है। सो ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे क्या लिखा है पता है? when the can is tilted, pressure due to the column of oil inside the can at the hole is much less than atmospheric pressure, so the oil does not flow out of the hole. But if one more hole is made at the opposite end of the top cover of the can, outside air will enter in through this hole and will exert atmospheric pressure on the oil from inside along with the pressure due to oil column. This results in the increase in pressure on oil, so it can easily flow or smoothly flow out of the hole of the can. ठीक है। सो ये एक टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कैन। तो मैं ये ऑयल कैन वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे ऐसा, क्योंकि आई डोंट नो तुम लोग ने ये एक्सपीरियंस किया कि है कि नहीं। ये बात है, एक्चुअली थियोरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, आंसर लिखने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको समझना चाहिए। इफ यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड, देन यू कैन मेक आंसर इजीली। Coming on to our next topic, which is I think the most important part of this chapter, measurement of atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अपने यूजेस है, और एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इजीली मेजर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आजकल तो बैरोमीटर तुम्हारे वॉचेस तक में आ गया है, मतलब स्मार्ट वॉच में भी होता है, तुम्हारी कैशियो के जी शॉक में भी होता है बैरोमीटर। ठीक है, बट ये जो बैरोमीटर की हम बात करने वाले हैं, दैट इज प्रिमिटिव बैरोमीटर। मतलब सबसे पहले टॉरिसेली और वो टाइम पे, मतलब 18 सेंचुरी में जो बैरोमीटर इन्वेंट हुए थे, वो बैरोमीटर से हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करेंगे, बिकॉज प्रेशर ही इतना नया टॉपिक है हमारे लिए, तो प्रेशर को मेजर करना और भी नया टॉपिक है। So there are three types of barometer which are commonly used, which we have to study. Simple barometer, which is just for a demonstration purpose, not practical purpose. 14th barometer, which is practical barometer. Aneroid barometer, which is little bit, you can say, convenient form of practical barometer. सबसे पहले सिंपल बैरोमीटर 1643 कि कौन सी सेंचुरी हुई है? 17th सेंचुरी ना। 17th सेंचुरी में टॉरिसेली फर्स्ट डिजाइंड अ सिंपल बैरोमीटर। टॉरिसेली एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डिजाइन किया सिंपल बैरोमीटर। टॉरिसेली एक प्रेशर का यूनिट भी है, टॉर। ठीक है, प्रेशर के यूनिट्स एक पास्कल है, वो टॉर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, मतलब प्रेशर का ही हो गया।
बट टॉरिस-एली ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ज्यादा काम किया था। सिंपल बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। So he designed the first simple barometer using mercury as the barometric liquid. कैसे इसका कंस्ट्रक्शन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे बिकॉज इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अ सिंपल बैरोमीटर, a simple barometer has a hard glass tube of about 1 meter length closed at one end. सिंपल बैरोमीटर में एक हार्ड ग्लास ट्यूब होता है, उसका लेंथ होता है 1 मीटर जितना। कितना लेंथ होता है? 1 मीटर। क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड है, यहाँ पे क्लोज्ड एंड है, ठीक है। द ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विथ प्योर मर्क्यूरी सच दैट नो एयर बबल रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब। तो हम लोग ट्यूब के अंदर पूरा मर्क्यूरी भरते हैं, उसको ऐसा शेक कर लेते हैं ताकि कोई भी एयर बबल अंदर ट्रैप हो गया है तो वो बाहर निकल जाएगा। मतलब वी मेक श्योर दैट वी फिल द ट्यूब कंप्लीटली विद मर्क्यूरी एंड देयर इज नो एयर बबल इनसाइड द ट्यूब स्ट्रिक्टली। उसके बाद द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड विद अ थंब। ओपन एंड को थंब से क्लोज कर देते हैं, मतलब मर्क्यूरी ऊपर तक लेवल तक भर गया है, ऊपर के लेवल तक, और उसको उसके ऊपर हम थंब रख देते हैं। थिन ट्यूब लेना है, ठीक है। एंड द ट्यूब इज देन मेड अपसाइड डाउन सेवरल टाइम्स सो दैट टू फोर्स आउट एनी एयर बबल विच माइट हैव एंटर्ड इट बाय मिस्टेक। तो उसको ऊपर नीचे करते हैं ट्यूब को, और फिर जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाते हैं। द कंप्लीटली फिल्ड ट्यूब विथ इट्स ओपन एंड क्लोज्ड बाय द थंब इज देन इन्वर्टेड इनटू a trough of mercury in such a way that open end of the tube is well immersed in mercury and the tube stands vertical as shown in the figure. तो ये जो ओपन एंड है उसको हम लोग मर्क्यूरी ट्रॉ में डालते हैं, और ट्रॉ में डालने के बाद हम लोग अपना थंब निकाल लेते हैं। ट्रॉ में डालने के बाद हम लोग अपना थंब निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो मर्क्यूरी ट्यूब में है और जो मर्क्यूरी ट्रॉ में, ट्रॉ मतलब ऐसा ओपन वेसल है जिसमें बहुत सारा मर्क्यूरी है, वो दोनों मर्क्यूरी एक दूसरे के साथ अब कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब ये ग्लास ट्यूब तो वर्टिकली अपसाइड डाउन हो गया, तो ये सारा मर्क्यूरी नीचे ट्रॉ में गिर जाएगा और ये ग्लास ट्यूब एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है कि जो ट्रॉ में ओपन एंड है ना, वहां पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ट्रॉ का जो प्रेशर है वो इस ग्लास में, ग्लास ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी भरा है उसके ऊपर भी होता है। तो ये ग्लास ट्यूब का जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा सा नीचे आता है एक लेवल तक, बट फिर वहां पे रह जाता है। सो ऑल्दो ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी के होने के बावजूद ये मर्क्यूरी नीचे नहीं गिरता बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है ना उसको बैलेंस कर रहा है। एच, ये जो हाइट है मर्क्यूरी कॉलम की ग्लास ट्यूब के अंदर, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम और वेट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट एच इज बैलेंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। केयर इज टेकन दैट नो एयर एंटर्स द ग्लास ट्यूब, ये बार बार वो लोग ने बोला है, ठीक है। इट इज सीन दैट मर्क्यूरी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स टिल हाइट अबव द मर्क्यूरी लेवल इन द ट्रॉ बिकम्स एच विच इज इक्वल टू नियरली 76 सेंटीमीटर। मतलब ये जो फ्री एंड है ना, यहाँ पे, यहां से यहां तक की अगर हाइट मेजर करोगे तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर। वहां तक वो मर्क्यूरी नीचे आ जाता है, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों होता है? देखो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने तुम्हें बताया, फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ये बैरोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, वर्किंग एक्सप्लेनेशन है, प्रिंसिपल है, सब कुछ तुम्हारे माइंड में चला जाना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर acts at all points such as C on the surface of mercury in the trough. The pressure at point A is due to the weight or thrust of the mercury column AB above it. मतलब ये जो पॉइंट ए है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो ये उसके ऊपर जो मर्क्यूरी कॉलम है उसकी वजह से, ठीक है। When mercury level in the tube becomes stationary, the pressure inside the tube at point A, which is at the level of point C, must be same at that of point C. मतलब ये लोग ये बोल रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट सी का प्रेशर सेम हो जाता है जब मर्क्यूरी यहाँ स्टेशनरी हो जाती है। तो पॉइंट ए पे कौन सा प्रेशर है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम अबाउ पॉइंट ए। प्रेशर सी पे कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट सी इज द सेम, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्क्यूरी कॉलम इनसाइड द ट्यूब इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट पॉइंट सी।
ठीक है। Thus, the vertical height of the mercury column in it, that is H, is called barometric height. जो वर्टिकल हाइट है ट्यूब के अंदर जिसमें मर्क्यूरी है उसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक हाइट। ये बैरोमेट्रिक हाइट इज द मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितनी बैरोमेट्रिक हाइट है उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा बैरोमेट्रिक हाइट। बैरोमेट्रिक हाइट फॉल हो गई मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी फॉल हो रहा है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो बैरोमेट्रिक हाइट को बना रहा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही नहीं है तो ग्लास में जो तुम्हारा इन्वर्टेड कॉलम है उसमें मर्क्यूरी कैसे रहता। द स्पेस लेफ्ट एम्प्टी अबाउ द मर्क्यूरी कॉलम, इसको बहुत ध्यान से याद रखना। मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है वो वैक्यूम होता है, उसको बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। आइडियली देयर शुड बी नो एयर इन दिस स्पेस। आइडियली ये जो खाली जगह दिख रही है उसमें वैक्यूम होता है, इसको बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। और इसमें कोई एयर नहीं होनी चाहिए आइडियली, तो ही ये बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर अच्छे से काम करेगा और एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा। अभी कैसे वर्किंग होता है इसका ये देखो। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस द प्रेशर एट पॉइंट सी इंक्रीजेस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो पॉइंट सी पे एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो पॉइंट सी पे अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो मर्क्यूरी सारा कहां पे जाएगा, ट्यूब के अंदर। मतलब बैरोमेट्रिक हाइट बढ़ जाएगी, मर्क्यूरी कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी। मर्क्यूरी कॉलम की हाइट बढ़ रही है मतलब पॉइंट सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब तुम सिर्फ बाहर से देखोगे सिंपल बैरोमीटर को एंड यू विल सी दैट अरे इसका हाइट बढ़ रहा है मर्क्यूरी कॉलम का ट्यूब के अंदर, इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। हाइट कम हो रहा है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। कितना इजी है, सिर्फ मर्क्यूरी कॉलम की हाइट को देख के तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंजेस को नोट कर सकते हो। दैट इज हाउ इट वर्क्स, सिंपल बैरोमीटर, वेरी सिंपल, ठीक है। ओके अच्छा, प्रेशर एट पॉइंट सी इंक्रीजेस एंड मर्क्यूरी फ्रॉम द ट्रॉ, ट्रॉ मतलब वो कंटेनर जो तुम्हारा ट्रे जैसा है, ओपन कंटेनर, इट फ्लोज इनटू द ट्यूब, thereby increasing the vertical height of mercury column in the tube so as to equalize the pressure at all points at the points A and C. On the other hand, when the atmospheric pressure decreases, the vertical height of the column in the tube also decreases to balance the atmospheric pressure. Thus, the vertical height of the mercury column from the mercury surface in the trough to the level in tube is a measure of atmospheric pressure. ये जो vertical height है is the measure of atmospheric pressure. Vertical height is the measure of atmospheric pressure. Remember that. Barometric height at normal temperature and pressure. कितना होना चाहिए? At normal temperature and pressure, the barometric height should be 0.76 मीटर और 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मतलब ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक वो नॉर्मल सी लेवल पे जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं तब ये होता है 76 सेंटीमीटर। इसलिए याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मर्क्यूरी। इसको कभी तुमने देखा होगा कहीं लिखा लिखा हुआ तो तुम्हें पता होगा। केमिस्ट्री में एक चैप्टर आने वाला है गैस लॉज, उसमें हम लोग ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत यूज करने वाले हैं। तो एक एसटीपी होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी लेनी है हमें पता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब ये 76 सेंटीमीटर का आइडिया आया तुम्हें? 76 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम एट सी लेवल at normal temperature and pressure। 76 सेंटीमीटर should be the height of the mercury column, ये वाली हाइट, ठीक है। या फिर 760 mm of Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी, या फिर 0.76 मीटर ऑफ Hg। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स वैल्यू। अच्छा, इसका सिर्फ ये एक यूनिट नहीं है, इसका एक दूसरा यूनिट है दैट इज 1 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो 1 एटमॉस्फेयर भी कभी कभी यूनिट यूज होता है, ये यूनिट भी कभी कभी यूज होता है। ये सारे यूनिट्स है प्रेशर के, खास करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझ में आया सिंपल बैरोमीटर। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैरोमेट्रिक हाइट। द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस चेंजेस ओनली व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट
फैक्टर जो है जो बैरोमेट्रिक हाइट को अफेक्ट करता है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बैरोमेट्रिक हाइट बढ़ेगी, मर्क्यूरी और ऊपर तक जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बैरोमेट्रिक हाइट नीचे गिरेगी। Note number 1, the barometric height remains same even when the shape of the tube is changed or the length of the tube submerged inside the mercury in the trough is changed or tube is tilted from its vertical position। मतलब ट्यूब को तुम वर्टिकल रखो या ऐसा थोड़ा टिल्ट कर दो, उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी केस में वो वर्टिकल हाइट को बैलेंस करेगा, ठीक है। मतलब ट्यूब को टिल्ट करने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, बैरोमेट्रिक हाइट में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। नंबर 2, इन एन एक्यूरेट और ट्रू बैरोमीटर, सिर्फ एक्यूरेट बैरोमीटर की बात कर रहे हैं, द एम्प्टी स्पेस अबाउ द मर्क्यूरी कॉलम, empty space above the mercury column in the tube is perfect vacuum if somehow, बहुत ध्यान से देखना, हम टॉरिसेलियन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, if somehow air enters the empty space or a drop of water or liquid gets into the tube, गलती से अगर कोई एयर का बबल या फिर लिक्विड का ड्रॉप, एयर लिक्विड का ड्रॉप उसमें एयर सॉरी वाटर का ड्रॉप उसके अंदर चला गया तो इट विल इमीडिएटली चेंज इनटू वेपर in the vacuum space and the air or the vapors of liquid will exert pressure on the mercury column due to which the barometric height will decrease। मतलब जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगा। सच अ बैरोमीटर इज नोन एज फॉल्टी बैरोमीटर। तो एक क्वेश्चन आएगा तुम्हें एक्सरसाइज में, व्हेन अ बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर is called or is known or is recognized as a faulty barometer, so you will say that there is a empty space above the mercury column which is known as perfect or Torricellian vacuum। If somehow air enters this empty space or a drop of water or a liquid enters this empty space, it immediately changes into vapor and it will exert pressure on the mercury column and the barometric height will decrease। Such a barometer is known as faulty barometer। The barometric height of a faulty barometer will be less than the actual atmospheric pressure। So these kind of barometers are not used, they are not used, okay। So you should take care that no air or liquid drop enters the mercury column, always remember that, okay। Now we'll go to the advantages of using mercury as a barometric liquid, followed by demerits or disadvantages of using water as a barometric liquid। And there are many things, ये theoretical part है लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है और इतनी बात हो सकती है इस पे, अगर इसको अच्छे से समझाना तो तुम्हारे आधे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें यही मिल जाएंगे। तो तुम्हें अलग से इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन लोगे पूरा थियरी मैं तुम्हारा रेडी करवा दूंगा, ओके। चलो, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड स्टार्ट करते हैं। अ बैरोमीटर कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी लिक्विड, बट मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं फिर? Mercury is preferred as a barometric liquid for the following reasons। कुछ ऐसे reasons है जिसकी वजह से मर्क्यूरी को प्रेफर किया जाता है और ये 5 ऐसे एडवांटेजेस है मर्क्यूरी यूज करने के। प्लीज ये पांचों एडवांटेजेस अपने दिमाग में डाल लो, समझ के डालो, लर्न कर लो, इनको याद रखो, जब पूछा जाए तो इसको बताना है तुमको। सबसे पहला एडवांटेज इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। इट्स वेरी हाई, इट इज 13.6 टाइम्स 10 to the power 3 kg per meter cube, 13 times, 13.6 times precisely greater than the density of water। कोई भी लिक्विड से, नॉट ओनली वाटर, कोई भी लिक्विड से डेंसिटी मर्क्यूरी की सबसे ज्यादा होती है। So only 0.76 meter height of mercury column is needed to balance the normal atmospheric pressure। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी लाइटर लिक्विड की बहुत ज्यादा हाइट को बैलेंस कर लेगा एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड। बट मर्क्यूरी बीइंग हैवी, उसकी सिर्फ 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट चाहिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। यूज ऑफ अदर लिक्विड्स, अगर दूसरा लिक्विड यूज करेंगे तो रिक्वायर मच लॉन्गर ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर यूज करेंगे
तो वाटर की डेंसिटी मर्क्यूरी की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स कम है। तो वाटर की जो बैरोमेट्रिक हाइट होगी अगर वाटर को यूज किया तो इट विल बी 13.6 टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब मर्क्यूरी कॉलम जब हम यूज करते हैं तो वी यूज 1 मीटर लेंथ, जनरली वी यूज 1 मीटर लेंथ ऑफ योर योर ग्लास ट्यूब। बट अगर वाटर यूज करेंगे बैरोमेट्रिक लिक्विड में मर्क्यूरी की जगह पे तो वी हैव टू यूज 13 मीटर, 13 to 14 मीटर लॉन्ग ट्यूब। 14 मीटर कितना होता है यार? 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट, राइट? 1 मीटर इज 3 फीट, 14 मीटर इज 42 फीट। 42 फीट कितना होता है यार? 42 फीट is approximately 3 to 4 stories हाई। 3 to 4 stories मतलब तुम्हारे बिल्डिंग के थर्ड फोर्थ फ्लोर तक वो ट्यूब जाएगी। मतलब किसी को अगर वो मेजरमेंट करना है बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उसको थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ये भाई जरा ऊपर जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो देख के ये मर्क्यूरी कॉलम यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है। मर्क्यूरी कॉलम नहीं, वाटर कॉलम है। और मर्क्यूरी कॉलम कितना है? जस्ट 1 मीटर, तुम्हारे हाथ में भी आ सकता है। 3 फीट लॉन्ग। इसी वजह से मर्क्यूरी प्रेफर किया जाता है। सेकंड, वेपर प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी इज नेग्लिजिबल। मतलब मर्क्यूरी का अगर वेपर बन भी गए तो उसका प्रेशर बहुत कम होता है। सो द वेपर्स इन टॉरिसेलियन वैक्यूम डज नॉट अफेक्ट द बैरोमेट्रिक हाइट। थर्ड इज मर्क्यूरी नीदर वेट्स और स्टिक्स टू द ग्लास। हमने इसके बारे में क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। मर्क्यूरी का जो कोहेसिविटी है वो ज्यादा है, अधेसिविटी कम है। वाटर इज मोर अधेसिव, लेस कोहेसिव। मर्क्यूरी इज मोर कोहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस मर्क्यूरी के ज्यादा है, अधेसिव फोर्सेस नहीं है। तो मर्क्यूरी ग्लास से स्टिक नहीं करता, इसलिए वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इज शाइनिंग एंड ओपेक, सो इट कैन बी इजिली सीन व्हाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। है ना, वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट है, वो कहाँ पे उसका लेवल एक्यूरेट है वो नहीं समझ में आता है। एंड फिफ्थ इज इट कैन इजिली बी ऑब्टेन्ड इन अ प्योर स्टेट, मर्क्यूरी। ठीक है, इसलिए मर्क्यूरी को प्रेफर किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड ये है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटर एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड, कितने डिसएडवांटेजेस है? 4। पहला डिसएडवांटेज, डेंसिटी ऑफ वाटर कम होने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 13.6 टाइम्स मर्क्यूरी से कम है वाटर की डेंसिटी। इसलिए 10.4 मीटर हाइट, मैं 13 पॉइंट्स हम बोल रहा था लेकिन यहाँ पे लोग ने दिया है 10.4 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज नीडेड टू बैलेंस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इट इज हाईली इनकन्वीनियंट टू टेक द ट्यूब ऑफ हाई 10.4 मीटर। फिर भी 2 माले का बिल्डिंग जितना लंबा ट्यूब हो जाएगा, कैसे करेंगे इतना इतना लंबा ट्यूब कैसे लेंगे हम? ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई, तो ऊपर जो टोरिसेलियम वैक्यूम बनेगा उसमें वेपर प्रेशर इतना ज्यादा होगा वाटर का कि वो रीडिंग को इनएक्यूरेट कर देगा, क्योंकि वो वाटर कॉलम को नीचे पुश करेगा वो प्रेशर। तब जो बैरोमेट्रिक हाइट होगी वो इनएक्यूरेट आएगी, मतलब रीडिंग गलत हो जाएगा। वाटर स्टिक्स टू द ग्लास सरफेस एंड वेट्स इट, सो द रीडिंग बिकम्स इनएक्यूरेट। वाटर इज ट्रांसपेरेंट, सो इट सरफेस इज नॉट इजिली सीन व्हाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी मर्क्यूरी के एडवांटेजेस है उतने ही वही टाइप के उसके ऑपोजिट जो पॉइंट्स है वो सारे डिसएडवांटेजेस है वाटर को बैरोमेट्रिक लिक्विड के तरीके से यूज करने के। ठीक है, सो ये सारे दो पॉइंट्स हो गए। अभी डी मेरिट्स ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर मतलब ये जो हमने सेटअप देखा वो जो सबसे पहले टॉरिसेली ने 1643 या 17th सेंचुरी में बनाया, ये क्यों यूज नहीं करते हम लोग? इसके कुछ डीमेरिट्स है। नंबर 1, देर इज नो प्रोटेक्शन फॉर द ग्लास ट्यूब। कितना इनकन्वीनियंट है यार इसको लेके घूमना हर जगह। कुछ भी थोड़ा धक्का लगा, ग्लास ट्यूब टूट गया, पूरा मर्क्यूरी नीचे गिर गया, बर्बादी। ठीक है। सेकंड, सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्रॉ इज ओपन, देयरफॉर देयर आर चांसेस दैट इंप्यूरिटीज मे फॉल एंड गेट मिक्स्ड विद द मर्क्यूरी इन द ट्रॉ। जो गलत है ना, इंप्यूरिटी नहीं होना चाहिए ट्रॉ में, इंप्यूरिटी नहीं होना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। तो ट्रॉ तो ओपन है, उसमें मर्क्यूरी में इंप्यूरिटी कैसे भी गिर सकता है। ठीक है, तो वी डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। अच्छा, इट इज इनकन्वीनियंट टू मूव द बैरोमीटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज नॉट पोर्टेबल। मर्क्यूरी स्पिल हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है ग्लास। A scale cannot be fixed with the tube or it cannot be marked on the tube. स्केल को मार्किंग नहीं कर सकते ना ट्यूब पे।
या फिर ट्यूब के साथ फिक्स भी नहीं कर सकते टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हाइट, बैरोमेट्रिक हाइट. द रीजन इज दैट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब चेंजेस. As a result, the level of free surface of the mercury in the trough changes due to the flow of mercury in or out of the tube. ये जो ट्रॉ है उसके अंदर जो मर्क्यूरी का लेवल है वो या तो कभी इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, बिकॉज बैरोमेट्रिक हाइट भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है. तो हम लोग किसी स्केल को फिक्स नहीं कर सकते उसके साथ. Therefore, the free surface of mercury in the trough will not remain coinciding with the zero mark of the scale if a scale is fixed with it to measure the barometric height. And the above demerits have been removed in the 14th barometer. तो ये सिंपल बैरोमीटर तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए सही नहीं है. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए और एक बैरोमीटर डिवाइस हुआ, नॉट वेरी लेट दो. अगर ये 1643 मतलब 17th सेंचुरी में, तो नियर अबाउट इन द सेम सेंचुरी और मे बी इन द नेक्स्ट सेंचुरी, वेरी सून practical barometer was devised by the scientist, which was known as 14, not 14. It has nothing to do with the number, but 14 barometer. अब ये 14 नाम क्यों रखा गया, हम लोग इसको गूगल पे सर्च करके पता लगा सकते हैं, ठीक है. बट हाँ, इसका नाम है 14 बैरोमीटर. 14 बैरोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर. इसका मैं फोटो लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, बिकॉज यहाँ जो इसका स्केच है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए. फोटो दिखा दूंगा तो एक कंस्ट्रक्शन इसका और क्लियर हो जाएगा. इसका कंस्ट्रक्शन ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेजरमेंट इसका इजी है. बाकी कंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट और डायग्राम को छोड़ के और कुछ नहीं है. और उसके बाद एनोरॉइड बैरोमीटर है, बस वेदर कैसे उससे चेक करते हैं, और एक एल्टीमीटर है, और ज्यादा कुछ नहीं है. चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है. तो लेट्स डू फटाफट फटाफट 14 बैरोमीटर. पहले उसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ तुमको. ओके, सो 14 बैरोमीटर, ये देखो इसका एक फोटोग्राफ है. तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक स्केल अटैच्ड है, और अंदर तुम अगर देख रहे हो देयर इज अ ट्यूब, वेरी थिन ट्यूब. और ये ट्यूब में जो सिल्वर कलर का दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मर्क्यूरी है, ठीक है. एंड दिस आई फील दिस इज द वर्नियर स्केल विच इज मूवेबल. ये मूवेबल है, इसके ऊपर मूव कर सकते हो. तो ये एक्यूरेट रीडिंग है. यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 774 या 775 mm ऑफ Hg जितना है. नीचे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक बॉक्स जैसा है जिसके अंदर आई थिंक मर्क्यूरी का पूरा जो एक ट्रे है वो एनक्लोज्ड है इसके अंदर, ठीक है. ये यहाँ पे हैंग किया हुआ है. सो दिस इज हाउ 14 बैरोमीटर लुक्स लाइक. एक वुडन प्लैंक के ऊपर ये पूरा सेटअप स्क्रू के थ्रू फिक्स किया गया है. जनरली ये वुडन जो प्लैंक है उसको ग्लास केस के अंदर भी रखते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. बट ये है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 14 बैरोमीटर, ये ऐसा दिखता है, ठीक है. चलो, तो अभी तुम्हारे बुक में जो 14 बैरोमीटर का डिटेल्स दिया है उसको हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं. The 14 barometer is a modified form of a simple barometer. It is used in laboratory to measure the atmospheric pressure. It also uses mercury as the barometric liquid. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल बैरोमीटर है ये, मतलब काम वो सिंपल बैरोमीटर का ही करता है, सिर्फ थोड़ा सा और प्रैक्टिकल है, और पोर्टेबल है, और हैंडी है, और छोटा है. छोटा तो मतलब हाइट उतनी तो नहीं कम होगी, हाइट तो 1 मीटर लॉन्ग ही होगी, बट हाँ पोर्टेबिलिटी ज़्यादा है. और जो भी डीमेरिट्स तुम्हारे सिंपल बैरोमीटर में थे उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है 14th बैरोमीटर में. इट ऑल्सो यूजेस मर्क्यूरी एज द बैरोमेट्रिक लिक्विड. ऑफकोर्स मर्क्यूरी में तो कोई इश्यू है नहीं, मर्क्यूरी यूज करने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ऊपर से एडवांटेजेस है. तो ये 14 बैरोमीटर भी मर्क्यूरी ही यूज करता है. कंस्ट्रक्शन देखो, 14 बैरोमीटर शोन इन द फिगर, ये तुम्हारी फिगर है यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नैरो ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ अबाउट 85 to 90 सेंटीमीटर, थोड़ा 1 मीटर से कम. ये नैरो ग्लास ट्यूब दिख रहा है, ये वाला जो ग्लास ट्यूब जो उस पिक्चर में भी दिखाया था मैंने, ठीक है. दिस ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब ऊपर वाले एंड में ये ट्यूब क्लोज्ड होती है और नीचे से ये ओपन होती है ट्यूब. ये जो ओपन एंड है, एक ग्लास वेसल जिसके अंदर एक लेदर का कप है जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल्ड है, उसके अंदर इसको डिप कर देते. जैसे ट्रॉ था वैसे ये ग्लास वेसल और लेदर कप आ गया उसकी जगह पे, ठीक है. This tube is closed at one end and has an opening at the other end. It is completely filled with pure mercury and it's kept
inverted in glass vessel having a leather cup at the bottom. The cup contains mercury and behaves like a straw. The open end of the tube is dipped into the mercury of the cup. The glass tube is protected by enclosing it in a brass case. ये जो ग्लास ट्यूब है ना, उसके बाहर एक ब्रास का केस होता है. ग्लास ट्यूब के बाहर एक ब्रास का केस होता है जिसके अंदर उसको एनक्लोज किया जाता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो ये जो ब्रास का केस है वो पूरा उसको बंद नहीं कर देता. आगे से वो ब्रास के केस में भी एक स्लिट होती है जिसके थ्रू तुम ये ट्यूब को देख सकते हो, लेकिन बाकी राइट और लेफ्ट और उसके पीछे साइड वो ब्रास का जो केस है वो उसको एनक्लोज कर देता है, उसको वो बंद कर देता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये ग्लास ट्यूब टूटे ना इजीली. एट द बॉटम ऑफ द ब्रास केस, यहां पे थोड़ा सा समझना है. एट द बॉटम ऑफ द ब्रास केस देयर इज अ स्क्रू एस, द एंड ऑफ विच सपोर्ट्स द लेदर कप ऑफ द ग्लास वेसल. ये दिख रहा है तुम्हें? ये पूरा जो ब्रास केस है उसके बॉटम में एक स्क्रू है. ये स्क्रू को जब तुम टर्न करोगे क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो स्क्रू ऊपर या नीचे जाएगा. स्क्रू के साथ साथ ये लेदर कप भी ऊपर या नीचे जाएगा. तो लेदर कप को ऊपर नीचे क्यों एडजस्ट करना है? देखो क्या होता है कि कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब चेंजेस आते हैं ना, तो मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है वो चेंज होती है, बैरोमेट्रिक हाइट जिसको हम बोलते हैं. सो उसकी वजह से कुछ एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी फ्लो करता है इनटू दिस ग्लास वेसल और द ट्रॉ. एंड कभी कभी मर्क्यूरी कॉलम की हाइट जब बढ़ती है, ठीक है, बैरोमेट्रिक हाइट जब बढ़ती है, तो ये ग्लास के वेसल में से या ट्रॉ में से मर्क्यूरी वापस ट्यूब के अंदर चला जाता है, ऊपर चला जाता है. तो ग्लास के वेसल में मर्क्यूरी की जो हाइट है यहाँ पे वो कम होती है. तो मतलब ग्लास वेसल में जो मर्क्यूरी लेवल है वो कम ज्यादा होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब क्या होता है कि ये जो पॉइंटर, आइवरी पॉइंटर तुम देख रहे हो, ये एग्जैक्टली आइवरी, आइवरी एक ऐसा मटेरियल है, आइवरी तुम्हें पता होगा, आइवरी इज अ वेरी प्रेशियस मटेरियल. ये मुझे लगता है कि जो एलिफेंट का जो टीथ है, एलिफेंट टूथ, उससे बनता है आइवरी. एज एज फार एज आई नो, टस्क जो बोलते हैं, टस्क, टस्क से बनता है आइवरी. तो ये आइवरी का पॉइंटर यहाँ पे लगाते हैं. ठीक है, आइवरी का पॉइंटर एक तो शाइनी होता है, उसका जो एंड है, शार्प एंड, वो ये मर्क्यूरी के लेवल को जस्ट ऐसा टच करता है. जब वो टच करता है ना, तो उसके ऊपर ऐसा एक डिप्रेशन आता है. डिप्रेशन मतलब ऐसा होल जैसा दिखता है मर्क्यूरी के ऊपर. होल नहीं बन जाता, लेकिन ऐसा मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा सा नीचे डिप हो जाता है. ठीक है, अगर ये लेवल ऑफ मर्क्यूरी चेंज होता है तो ये होल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है. सो इफ द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इंक्रीजेस, आइवरी पॉइंटर थोड़ा सा डिप हो जाता है मर्क्यूरी के अंदर, फिर वो होल जो डिप्रेशन है वो पॉइंटेड एंड वाला वो नहीं दिखता. अगर मर्क्यूरी का लेवल फॉल होता है ग्लास वेसल में, तो आइवरी पॉइंटर उसको टच ही नहीं कर पाता. तो हमें हमेशा क्या केयर करना है, रोज सुबह उठ के जब हमें चेक करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या डे के किसी भी टाइम पे जब हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करना है, तो स्क्रू को हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले इन सच अ वे. स्क्रू को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं इन सच अ वे दैट द लेवल of mercury in the glass vessel just touches the point of the ivory pointer. ताकि क्या होगा कि हमको पता चले कि ये जो जीरो लेवल है, जीरो लेवल किसका जीरो लेवल, ये जो स्केल देख रहे हो तुम, ये स्केल, मेन स्केल, उसका जीरो लेवल और आइवरी पॉइंटर का जो पॉइंट है वो एकदम एक लाइन में होता है. और हमें दोनों की लाइन में मर्क्यूरी का जो लेवल है ग्लास वेसल में उसको भी रखना पड़ेगा, तभी तो हम एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर ये बैरोमेट्रिक हाइट को मेजर कर पाएंगे. बैरोमेट्रिक हाइट है ये, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास वेसल टू दिस टॉप. ठीक है, तो मतलब वहां से वहां तक अगर मेजर करना है तो हमें जीरो ऑफ द ग्लास ट्यूब विच इज, मतलब ग्लास ट्यूब के ऊपर जो जीरो मार्किंग है और ग्लास वेसल में जो मर्क्यूरी लेवल है उसको सेम लाना पड़ेगा. और उसका एक ही तरीका है, आइवरी पॉइंटर उसको मर्क्यूरी को टच कर रहा है कि नहीं एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, वो देखना है.
ग्लास वेसल में आइवरी पॉइंटर ज्यादा अंदर तो नहीं चला गया या टच ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले सबसे पहले स्क्रू को एडजस्ट कर लेना है। स्क्रू को एडजस्ट करने से लेदर कप या ग्लास वेसल ऊपर या नीचे मूव होगा। आइवरी पॉइंटर का पोजीशन पहले चेक कर लो और फिर देखो बैरोमेट्रिक हाइट कितनी है। बैरोमेट्रिक हाइट का जो वैल्यू दिखाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिंपल। अब समझ में आया तुम्हें? ग्लास वेसल, लेदर कप, स्क्रू, आइवरी पॉइंटर एंड लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास वेसल, ये सब बहुत टेक्निकल और इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर अगर तुम्हें कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन आते हैं दिमाग में या डम क्वेश्चन भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज पूछो मुझसे। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। लेकिन पहले ही मेरी बात सुननी पड़ेगी ना तुम्हें। तुम बोलोगे नहीं नहीं सर, लाइव क्लास लाइव क्लास। अरे यार, पहले मेरी बात तो सुन लो। शायद तुम्हारे क्वेश्चन मेरी बात सुनने के बाद डिसॉल्व हो जाए। राइट? मेरा कोशिश तो यही रहता है कि मेरा मेरा एक बार लेक्चर तो सुन लो यार। फिर तुम्हारे डाउट ही क्लियर अगर हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर भूल जाते हो तो फिर से सुनना पड़ेगा तुम्हें। या तो लाइव सुनो या तो लेक्चर सुनो, कुछ मुझे तो सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। बाकी और कोई तरीका नहीं है डाउट सॉल्व करने का। यू हैव टू लिसन टू योर टीचर यार। ठीक है, चलो। ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। The leather cup can be raised up or lowered down with the help of the screw S. वही सेम चीज बता रहा हूं बट टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में। To adjust the mercury level in the glass vessel. The mercury level in the glass vessel is adjusted to coincide with the zero mark of the main scale graduated in millimeter attached with the brass tube. ये जीरो मार्क तुम्हें मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कहीं पे जीरो मार्क है। अरे इसमें तो mm ऑफ एच जी 650 से शुरू होता है। हाँ, तो इनका जीरो मार्क थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली जीरो मार्क होना चाहिए, बट ये mm ऑफ एच जी में डायरेक्टली इधर मार्किंग दे दिया है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं इसका जीरो मार्क कैसे है। मतलब ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए है। इसके लिए वो लोग ने इंटेलिजेंटली बनाया है इसको कि 650 से नीचे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी जाएगा ही नहीं, और 820 से ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये मेजरमेंट, ये स्केल पे सिलेक्ट किया है। तो ये प्रैक्टिकल है। हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें जीरो मार्क है। तो यहाँ पे लोग ने बोला है कि द जीरो मार्क ऑफ द फिक्स्ड स्केल at the tip of ivory pointer eye which is distinctly visible from outside. ये यहाँ पे जीरो मार्क होता है आइवरी पॉइंटर के टिप पे। और आइवरी पॉइंटर के टिप पे ग्लास वेसल के अंदर के मर्क्यूरी का लेवल भी होना चाहिए, इसलिए तो आइवरी पॉइंटर दिया है वहां पे। The upper part of the brass tube has a slit in it so as to note the mercury level. यहाँ पे एक स्लिट होता है, ये स्लिट है इधर से इधर तक, इतना ही स्लिट होता है। मतलब इसके अंदर जो भी तुम्हारे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट है वो विजिबल होगी और तुम नोट कर सकते हो रीडिंग। For accurate measurement, a vernier scale is provided with slides which slides over the main scale by using the screw R. हम सबको पता है वर्नियर स्केल का क्या यूज है। वर्नियर स्केल क्या करता है? उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट को कम कर देता है, मतलब एक्यूरेसी और बढ़ जाती है रीडिंग की। A thermometer T is also mounted on the case which records the room temperature. मतलब जब भी देखो एक 14 बैरोमीटर के साथ साथ एक थर्मोमीटर हमेशा होता ही है, किसी भी बैरोमीटर के साथ, क्योंकि जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को साथ में मेजर किया जाता है इसकी वजह से। अच्छा, मेजरमेंट कैसे होता है? टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, first the level of mercury in the leather cup is raised up or lowered down with the help of the screw S. मैंने पहले ही बोला तुम्हें, अगर तुम्हें मेजरमेंट करना है तो ये स्क्रू को ऊपर नीचे करके ये ग्लास वेसल को ऊपर नीचे करो, ताकि ये जो मर्क्यूरी का लेवल है ग्लास वेसल के अंदर, दैट एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द पॉइंट ऑफ द आइवरी पॉइंटर विच एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द जीरो मार्क ऑफ द ग्लास ट्यूब और द स्केल और द मेन स्केल। ठीक है, उसके बाद ही रीडिंग लेना है, so that the mercury level in the glass vessel just touches the ivory point eye. The position of mercury level in the barometer tube is noted with the help of main scale and the vernier scale. The sum of vernier scale reading and main scale reading gives the barometric height. Barometric height पता चल गया मतलब atmospheric pressure पता चल जाएगा। ठीक है, इजी है ना? अभी इजी लग रहा होगा तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? एनएरॉइड। एनएरॉइड, एंड्रॉइड नहीं है, ठीक है, एनएरॉइड। एनएरॉइड बोलते हैं, एनएरॉइड भी बोलते हैं, एनएरॉइड कैसे भी बोल सकते हो तुम, एंड्रॉइड मत बोलना है इसको। एनएरॉइड बैरोमीटर, दिस बैरोमीटर हैज नो लिक्विड। सबसे पहले ही बॉम्ब डाल दिया लोग ने, ऐसा इट हैज नो लिक्विड। तुम बोलोगे लिक्विड नहीं है तो फिर ये कैसे काम करता है?
It is light and it is portable and therefore it can be easily carried from one place to another. तुम्हारे पॉकेट में डाल के भी लेके जा सकते हो. अमेजिंग ना. It is calibrated to read directly the atmospheric pressure. डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाता है. इट नीड्स नो प्रायर एडजस्टमेंट लाइक 14 बैरोमीटर हो, स्क्रू को ऊपर नीचे करो, आइवरी पॉइंटर को देखो, कुछ नहीं. डायरेक्टली सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है. कंस्ट्रक्शन क्या है ये देखो. तुम बोलो क्या है ये टिन का डब्बा, ये क्या है, रद्दी डब्बा पेपर भंगार वाले, कौन है ये, क्या है ये भंगार बाटली, क्या है ये. एनेरॉइड बैरोमीटर. देखो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त है. यहाँ पे ना इसका स्केच अच्छा नहीं दिया है, मैं तुम्हें इसका पिक्चर दिखाता हूँ, रुको. Okay, so I have some pictures. First see the picture and then ये देखो इसका एक स्केच है. तो एक ऐसा एक छोटा सा डब्बे डिब्बे जैसा होता है, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है. मतलब मैकेनिज्म में अंदर तुम देख रहे हो इसका एक अंदर एक पार्शली इवैक्यूएटेड चेम्बर टाइप है और उसके ऊपर एक लेवर जैसा है. वो लेवर के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर कनेक्टेड है, पॉइंटर के ऊपर एक स्केल है, स्केल के ऊपर स्टॉर्म, रेन चेंज, फेयर, सेट फेयर, पता नहीं अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, वेदर से रिलेटेड चीज़ें. मतलब ये वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है ना. अंदर से ऐसा दिखता है. इसका एक्चुअल फोटोग्राफ देखो, ये ब्यूटीफुल ना, कितना अच्छा दिख रहा है, गोल्डन. पॉकेट में लेके घूम सकते हो. तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आराम से दिखता है. ये देखो कुछ 739 प्रेशर है इस जगह पे जहाँ पे ये पॉइंट अभी मार्क कर मतलब दिखा रहा है. जनरली 760 mm ऑफ एच होता है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी नीचे दिखा रहा है, देखो छोटा सा होता है. तो रियली इफ समबडी आस्क्स मी कि बेटा बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, मैं तो यही मांगूंगा यार, बर्थडे गिफ्ट में मेरे को एक एनारॉइड बैरोमीटर दे दो. क्या कूल है यार, ये गैजेट लेके तुम घूमोगे अपनी जेब में और फिर निकाल के बीच में प्रेशर चेक कर लिया. ओ माय गॉड मैन, ओ माय गॉड, लड़कियां तो पागल हो जाएगी. आई एम सॉरी फॉर दैट. दैट वाज जस्ट अ जोक. ओके, so yeah, I would gladly take an aneroid barometer as a birthday gift. So yes, so that's my choice, like, because it's so cool, it's such a cool device. क्योंकि छोटा सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है. चलो देखते हैं कैसे काम करता है. तो ये जो बंगार बाटली डब्बा है ये वैसा नहीं होता है. ये इसका मैंने तुम्हें स्केच बताया, एक्चुअल मशीन भी बताया. इट्स मोर कूलर. ओके, चलो कंस्ट्रक्शन देखते हैं. Figure shows the main parts of aneroid barometer. It consists of a metallic box B which is partially evacuated. ये जो metallic box दिख रहा है B, ये वाला, ये partially evacuated. ये थोड़ा zoomed in वाला फिगर है, ये थोड़ा सा बाहर से मतलब जूम आउट करके लिया है. पार्शियली इवैक्यूएटेड मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से थोड़ा सा कम रहता है. अंदर एयर का प्रेशर कम रहता है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The top D of the box is springy. Wow, cute. Springy. Top D of the box is springy. मतलब स्प्रिंगी मतलब ऊपर नीचे आराम से हो सकता है. यहाँ पे ऐसा जो जिगजैग लाइन बना है ना, वो स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग जैसा. एंड इट इज कोरुगेटेड मतलब इट इज मेड लाइक दैट जिगजैग टाइप ऑफ मटेरियल, कोरुगेटेड मटेरियल, जिसको तुम ऐसा प्रेस कर सकते हो और फिर वो तुम उसको ऐसा मूव कर सकते हो. कोरुगेटेड होता है. कोरुगेटेड का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, बट या इफ यू डोंट नो कोरुगेटेड, लुक अप इन द डिक्शनरी. इन द फॉर्म ऑफ अ डायफ्राम. डायफ्राम मतलब एक ऐसा ये जो डी है ना, ये डायफ्राम है. ये डायफ्राम ऐसा होता है कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है. एक्सपांडेबल क्या बोलते हैं, एक्सपांडेबल लेवल को डायफ्राम बोलते हैं. एनीवेज, at the middle of the diaphragm there is a thin rod L toothed at its upper end. Middle of the diaphragm में एक rod होता है, rod L, which is toothed at the upper end. The teeth of rod fit well into the teeth of the wheel S attached with pointer P. तो ये जो rod है जो डायफ्राम के साथ अटैच्ड है, उसमें टीथ रहते हैं. वो टीथ व्हील के टीथ के साथ मैश होते हैं, और जैसे ही रॉड ऊपर जाता है, जस्ट इमेजिन रॉड ऊपर गया, ये टीथ वाला पार्ट ऊपर गया, तो ये व्हील जो है एस वो भी टर्न होगा.
दैट विल टर्न इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर रॉड नीचे गया, टीथ नीचे गया, ये व्हील एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा. तो व्हील के टर्न होने से पॉइंटर टर्न करेगा और पॉइंटर क्या करेगा, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पॉइंट करेगा. अच्छा, अब ये रॉड क्यों ऊपर नीचे होता है? बिकॉज डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो डायफ्राम के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, रॉड नीचे जाएगा, रॉड नीचे जाएगा तो व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंटर राइट की तरफ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा दिखाएगा. एंड द सेम हैपेंस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस. द box comes box B expands, the diaphragm D comes up, the rod D comes up, the wheel turns in counterclockwise direction, and the pointer goes in the left side, and it shows lesser atmospheric pressure. ठीक है, ये पूरा मैंने वर्किंग बता दिया. अब मैं ये वर्किंग को वापस नहीं पढ़ने वाला तुम्हारे लिए. The circular scale is graduated and it is initially calibrated with a standard barometer so as to read the atmospheric pressure directly in terms of barometric height. तो तुम्हें तुरंत पता चलेगा कि barometric height कितनी है, atmospheric pressure कितना है. Uses क्या है barometer के? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानना उसका यूज है. क्यों जानना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉर वेदर फोरकास्टिंग. सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के पीछे वेदर फोरकास्ट. एंड एज एन एल्टीमीटर टू मेजर द हाइट. हाइट मतलब एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस अबाउ द सी लेवल. जब तुम किसी माउंटेन पे जाते हो तो तुम्हें मेजर करना है कि ये माउंटेन की हाइट कितनी है, सी लेवल से हम कितने ऊपर आ गए. तो इनडायरेक्टली देखो, हाइट मेजर तो करने नहीं जा सकते तुम कि एक तुम्हारे फ्रेंड को बोलो कि नीचे जा, मैं एक तुम्हें मेजर टेप देता हूँ, तू देख ले कितने माउंटेन को मेजर कर लेंगे. ऐसे थोड़ी होता है. सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है उससे तुम्हें हाइट पता चल जाएगी. ठीक है. वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम द सी लेवल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग टू फैक्टर्स. Number one, decrease in the height of air column, which causes a linear decrease in the atmospheric pressure. And number two, decrease in the density of air, which causes a non-linear decrease in the atmospheric pressure. दो चीजों की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है एज यू गो हाई अबाउ द सी लेवल. एक तो डिक्रीज इन द हाइट ऑफ एयर कॉलम की वजह से, ठीक है, और डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर की वजह से. Decrease in the density of air is rapid at low altitude, but it is very slow at high altitude. So atmospheric pressure can be considered, atmosphere itself can be considered to consist of a number of parallel layers of air. तुम्हें पता होगा ये parallel layers of air के बारे में, stratosphere और मेसोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, आई डोंट नो कितने स्फीयर है, बट ये पैरेलल लेयर्स है. ईच लेयर एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द थ्रस्ट ऑफ द एयर कॉलम अबव इट. Therefore, as we go up, the height of air column above us decreases, and the thrust exerted by the air column also decreases, which results in the decrease of atmospheric pressure with increase in altitude. Since the lower layer since the lower air layers get compressed due to the weight or thrust of the upper layers, therefore the density of air layers is more near the earth's surface and it decreases as we go higher and higher. ठीक है. लोअर एयर लेयर्स के ऊपर ज्यादा एयर प्रेशर है, वो ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं अपर लेयर एयर लेयर्स के कंपैरेटिवली, इसलिए डेंसिटी ऑफ लोअर लेयर ज्यादा होती है. इसलिए हम जितना ऊपर जाते हैं उतना डिक्रीज होती है डेंसिटी, और डेंसिटी जब डिक्रीज होती है तो एयर प्रेशर भी डिक्रीज होता है. लेकिन ये जो डेंसिटी में डिक्रीज होता है, इट इज नॉट लीनियर. मतलब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी रैपिडली डिक्रीज होगी, बट हायर एल्टीट्यूड पे डेंसिटी का जो डिक्रीज है वो थोड़ा स्लो होगा. So due to this decrease in density of air with altitude, the atmospheric pressure also decreases with altitude in a non-linear way. तो ये जो non-linear way है, ये इस ग्राफ में दिखाया हुआ है. So this is height above the sea level. Zero height पे मतलब at sea level, the atmospheric pressure is approximately 76 centimeter of Hg.
अब जैसे जैसे तुम्हारी हाइट अबाउट द सी लेवल बढ़ती जाती है, दिख रहा है हाइट बढ़ रही है किलोमीटर्स में, एयर प्रेशर भी उतना कम हो रहा है। लेकिन ये ग्राफ देखो कैसा है, कर्व है, मतलब देयर इज अ नॉन लीनियर डिक्रीज इन एयर प्रेशर एज द हाइट अबाउट द सी लेवल इंक्रीजेस। This figure shows the variation of atmospheric pressure with height above the sea level. At Mount Everest, the atmospheric pressure is only 30% of the atmospheric pressure at sea level. मतलब Mount Everest पे atmospheric pressure 70% से कम हो जाता है as compared with the sea level. इसलिए Mount Everest पे जाने वाले लोग their health conditions should be very very strong. Otherwise क्या होगा? They will experience nose bleeding and what not यार. So they have to take a ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो, क्योंकि वहां पे एयर बहुत थिन होती है, एयर थिन होती है मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम होता है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस देखो, एट हाई एल्टीट्यूड सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, breathing becomes difficult and nose bleeding may occur due to excess of pressure of blood over atmospheric pressure. Therefore, blood pressure patients are not advised to go to hill stations or higher altitudes. At high altitude, fountain pen leaks. The reason is that fountain pen filled with ink contains some air at pressure equal to the atmospheric pressure. But when pen is taken to higher altitude, atmospheric pressure is lower than the excess pressure inside the rubber tube inside the fountain pen, which forces the ink to leak out. ठीक है, तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हायर एल्टीट्यूड्स के डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज कंपेयर टू सी लेवल्स। ठीक है, चलो वेदर फोरकास्ट बाय द यूज ऑफ बैरोमीटर, मैंने पहले भी दिखाया था, बैरोमीटर में लिखा हुआ था स्टॉर्म, रेन, पता नहीं क्या क्या। कैसे पता चलता है स्टॉर्म आने वाला है, रेन आने वाला है? देखो यहाँ पे तो क्लियर है कि प्रेशर जितना कम, मतलब स्टॉर्म और रेन और उसके चांसेस ज्यादा है, और प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतने फेयर एटमॉस्फेयर हो, फेयर वेदर होगा। कैसे फोरकास्ट करते हैं और कैसे फर्क पड़ता है? The atmospheric pressure is at a place is affected by the change in the temperature and the amount of water vapors present in air at that place. The reason is that density of air changes with the change in temperature and with the change of water vapors present in it. The density of air decrease with the decrease in temperature and also with the increase in the amount of moisture present in it. That is, the density of moist or humid air is less than the density of dry air. ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट और ह्यूमिड एयर कम है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। जैसे ही मॉइस्ट या ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। और जब रेन या स्टॉर्म आने वाला है तो बहुत सारा मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, तो डेंसिटी कम हो जाती है एयर की, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, so atmospheric pressure or barometric height gradually decreases as the temperature or the presence of moisture increases. Thus, the change in atmospheric pressure helps us to know about the weather in advance. तो वेदर चेंज होने से पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस हो जाते हैं, तो पहले ही हम फोरकास्ट कर सकते हैं। तो जो वेदर फोरकास्ट तुम देखते हो, अभी तो एप्स आ गए बहुत सारे, तुम्हारे एंड्रॉइड या फिर तुम्हारे आईफोन के ऊपर तुरंत तुम्हें वेदर समझ में आ जाता है। तो ये प्रेडिक्शन पहले ही हो जाता है। एक वेदर फोरकास्ट लैब होता है, हर एक सिटी में होता है, हर एक कंट्री के हर पार्ट में होते हैं, वो लोग पहले ही वेदर को फोरकास्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे हमें समझ में आ जाता है कि बारिश आने वाली है, नहीं आने वाली है, या वेदर कैसा होगा, ड्राई होगा, ह्यूमिड होगा, कोल्ड होगा। If the barometric height at a place suddenly falls, it means the pressure at that place has decreased suddenly, which indicates the coming of a storm or a cyclone. If barometric height gradually falls, धीरे धीरे जब कम होती है, it indicates that moisture is increasing. That is the possibility of rain. A gradual increase in the barometric height means moisture in the air is decreasing, indicates the coming of a dry weather. Sudden rise in barometric height means flow of air from that place to other surrounding low pressure areas, which indicates the coming of extremely dry weather. If there is no abrupt change in barometric height, indicates the atmospheric pressure will be normal. That means the weather will be fair, unchanged. ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो वेदर फोरकास्टिंग में हम लोग बैरोमीटर के हेल्प से यूज करते हैं। देन द लास्ट पार्ट इज एल्टीमीटर। एल्टीमीटर मतलब एनेरॉइड बैरोमीटर। एल्टीमीटर मतलब एनेरॉइड बैरोमीटर। ये क्या बताता है? ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है
और ये एल्टीट्यूड मेजर करता है, मतलब हाइट ऑफ अ प्लेस और हाइट ऑफ दैट एयरक्राफ्ट अबाउ द सी लेवल. Since atmospheric pressure decreases with increase in height above the sea level, therefore barometer which measures the atmospheric pressure can be used to determine the altitude of a place above the sea level. Its scale is calibrated in terms of height of ascent. Ascent मतलब चढ़ाव, मतलब height of climb. जो एयरक्राफ्ट क्लाइंब करता है ना, उसकी हाइट कितने कितने हाइट पे अभी एयरक्राफ्ट है, वो हमें एल्टीमीटर बताता है. जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है इतनी हाइट बढ़ जाती है, तो वो डायरेक्टली हाइट बढ़ाता है, मतलब हाइट बताता है. मतलब यहाँ पे जो तुम स्केल देख रहे थे, इसका जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलिब्रेटेड है, उसकी जगह पे एल्टीमीटर में हाइट होगी. और ये हाइट कैसी होगी पता है? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो हाइट है वो ऑपोजिट होगी. मतलब हाइट यहाँ पे जीरो होगी, और यहाँ से हाइट बढ़ते 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 मैक्सिमम हाइट इस साइड होगी. तो धीरे धीरे पॉइंटर लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट करेगा एज योर एयरक्राफ्ट गोज हायर अबाउ द सी लेवल. इट स्केल इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ असेंट, with height increasing towards left because the atmospheric pressure decreases with increase of height above the sea level. ठीक है. सो ये थियरी पार्ट था. न्यूमेरिकल्स है लेकिन बहुत कम है, ये हम लोग अलग से करेंगे न्यूमेरिकल्स. चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. मैंने ये चैप्टर पहले इसलिए पढ़ा है, आई नो तुम्हारा ये चैप्टर इमीडिएट एग्जाम में शायद नहीं आने वाला है, बट दैट डज नॉट मैटर. ये जो चैप्टर है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है फ्लूइड प्रेशर के, जो हम आगे के चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं. तो विदाउट नोइंग व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज फ्लूइड प्रेशर, आगे का चैप्टर करना आई डोंट थिंक इट इज अ लॉजिकल थिंग. ठीक है. सो अब नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू डू इज द नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर, which is Archimedes principle and buoyant force or buoyancy. ठीक है. तो वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर. आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर. See you in the next video. Bye bye.